اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجئے، مالی تعاون کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج میں جا رہا ہوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج شیگاؤں میں بھارت جوڑو یاترا ہے اور راہل گاندھی کی جو سبھا ہوگی، جن سبھا، اس میں مجھے VIP پاس ملا ہے۔ اس وقت بھارت جوڑو یاترا بھارت کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے، کیونکہ ملک میں حد سے زیادہ نفرتیں، ان نفرتوں کے پجاریوں نے اور ان کرسی کے لالچیوں نے پورے ملک میں نفرتوں کا ماحول بنا دیا ہے۔ تو ایک اچھی یاترا شروع ہے، وہاں جانا ہے، پھر وہاں سے میں نکل جاؤں گا۔ آج مہاراشٹر کا عثمان آباد ضلع میں ایک گاؤں ہے کلم میں، وہاں پر مجلس علماء و حفاظ نے آئندہ کل ایک بہت شاندار پروگرام جلسہ سیرت النبی اور تقسیم انعامات پر رکھا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں اور سینکڑوں بچوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ ان کو میرے ہاتھوں سے انعامات بھی دیے جائیں گے اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شاندار پروگرام بھی آئندہ کل کلم شہر کے سرمئی فنکشن ہال میں صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک ایک شاندار پروگرام رہے گا۔ عثمان آباد مہاراشٹر کے کلم میں دعا کیجیے کہ اللہ میرے سفر کو آسان کرے۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، راہل گاندھی جو ہے بالکل ایکشن موڈ میں ہیں اور راہل گاندھی کے نیترتو میں جو بھارت جوڑو یاترا چل رہی ہے، اس نے یوں سمجھیے کہ نفرت کے پجاریوں کو بوکھلا دیا ہے۔ جو لوگ نفرتیں پھیلا کر ہندو مسلم میں نفرتیں پیدا کر کے جو لوگ ستا کرنا چاہ رہے ہیں، بھارت جوڑو یاترا سے ابھی گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ لاکھوں لوگ اب راہل کے قدم سے قدم ملا رہے ہیں اور سب کو لگ رہا ہے کہ اب بھارت کو بچانا مہنگائی سے، نفرتوں سے، دنگوں سے اب بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے نفرتی پارٹی کو یہاں سے ہٹانا ضروری ہے۔ تو اب راہل گاندھی ایکشن موڈ میں آ گئے، اور گزشتہ کل تو راہل گاندھی نے بالکل مہاراشٹر میں آ چکی ہے یاترا، شیگاؤں میں ہے آج۔ راہل گاندھی نے گزشتہ کل ڈائریکٹ کہا کہ خوف زدہ ڈرے ہوئے ساورکر نے انگریزوں کی مدد کی۔ راہل کے بیان پر ہندوتوادی
टोला आग बगोला हो गया है। और राहुल गांधी ने खुलकर ये कहा कि गांधी, नेहरू और पटेल को सावरकर ने धोखा दिया। राहुल गांधी ने सावरकर का माफीनामा भी मीडिया को पढ़कर सुनाया। अब इस बयान पर रियासत में खूब हंगामा हो रहा है। सावरकर के पोते ने दादर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेसी रहनुमा को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया है। बीजेपी जबरदस्त एहतजाज कर रही है, क्योंकि जितने भी सावरकर के लख्ते जिगर है, बड़े तकलीफ उनको हो गई है। शिंदे ग्रुप ने भी सुर में सुर मिला लिया है। मन से रहनुमा आज भारत यात्रा जोड़ो यात्रा को काली झंडी दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे ने भी बयान की मुखालिफत की है। खैर, राहुल गांधी ने खुलकर यह कहा कि अगर हुकूमत को लग रहा है कि इस यात्रा से मुल्क को नुकसान है तो इस यात्रा को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी ने सीधा चैलेंज कर दिया। आइए दूसरी बड़ी खबर आ रही है। नोटबंदी पर आज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी और नोटबंदी के फायदे बताएगी। 6 साल हो गए मुल्क की तबाही को, आपको मुझे किसी को नोटबंदी का फायदा नजर नहीं आया। हां, नुकसान तो खुले नजर आए, मगर 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार नोटबंदी के फायदे बताएगी। जी हां, मरकज ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए मुल्क में नोटबंदी नाफिज करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दिफा किया है। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के फवाइद की वजाहत करते हुए हुकूमत ने कहा कि इसके नाफिज होने से 8 महीने पहले आरबीआई से मशवरा किया गया था। इस मामले में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए नोटबंदी के फायदे बताए। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट को फायदे बताए गए, भले आपको और मुझे समझ में ना आए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में नीच नाटक हर रोज होती है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी है। कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम जो एक हिस्टोरिकल पैलेस है और हिस्टोरिकल टाउन है, जहां शेर मैसूर शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की बनाई हुई एक खूबसूरत जामे मस्जिद है, जिस शेर से अंग्रेज कांपते थे और जिसके शहीद होने के बाद अंग्रेजों ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ। जब तक कि शेर जिंदा रहा, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई हिंदुस्तान को अपना कहने की और हमारा कहने की। लेकिन क्या करें, अंग्रेजों के वफादार उस वक्त भी थे और अंग्रेजों के वफादारों की औलाद आज भी है और शेर मैसूर को बदनाम करने की कोशिशें कर रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि बजरंग दल ने हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल करके ये कहा है कि श्रीरंगापट्टनम की तारीखी जामे मस्जिद को मंदिर करार दिया जाए। यानी कर्नाटक में श्रीरंगापट्टनम जामे मस्जिद तनाजे ने इस वक्त नया मोड़ ले लिया है, जब बजरंग दल ने हाई कोर्ट में इसे खाली करने का मुतालबा करते हुए PI दाखिल की है। और PIL में दावा किया गया है कि मंदिर को गिराकर ये मस्जिद बनाई गई है। बजरंग दल की दरखास्त में कहा गया है कि मुंडा जिले के तारीखी श्रीरंगापट्टनम शहर में वाक़ जामे मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों के ढांचे के आसार मौजूद है, इसलिए इसे फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। साथ ही हिंदू अकीदतमंदों को यहां वाक़ई कल्याणी रिवायती आबी जखीरे में नहाने की इजाजत दी जाए। बजरंग दल के कारकुनों ने ज्ञानवापी मस्जिद के तर्ज पर मस्जिद का दोबारा सर्वे करने का भी मुतालबा किया है। PIL बजरंग दल के रियासती सदर और दीगर 108 लोगों ने दायर की है। आइए, श्रद्धा कत्ल मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जहां श्रद्धा कत्ल मामले में आफ्ताब पूनावाला ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और वाकई के दिन की एक एक बात तफसील से बताई है। खैर, जो भी है ये, और आफ्ताब हो कि कोई भी हो, ऐसे मुजरिमों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए। मगर अल्लाह का शुक्र है, एक खास बात तो देखने में मिल रही है कि तमाम मुसलमान इसको फांसी पर लटकाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मुजरिम है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मुजरिमों और कुछ रेपिस्टों के रिहाई के लिए लोगों ने, बेशरम और बेगैरत लोगों ने रैलियां निकाली है कि इन रेपिस्टों को आजाद किया जाए। और जब रेपिस्ट आजाद हुए हैं तो उनको मिठाइयां भी खिलाई है, जैसे कि गोधरा में हुआ है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुसलमान आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ हर जगह मेमोरेंडम देकर ये कह रहे हैं कि इसे फांसी दी जाए। और दूसरी खास बात यह कि आफ्ताब कौन है हमें इससे लेना देना नहीं, मगर हमारे यहाँ की आतंकी मीडिया आफ्ताब 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 बोलकर हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का पूरा हक अदा कर रही है।
कॉन्टैक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश के गैर तस्लीम शुदा मदरसों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई के अहकामात दिए गए हैं। यूपी हुकूमत ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो गैर मुसल्लमा मदरसों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से रियासती हुकूमत को दाखिल करदा एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर 8,441 मदरसे रियासत भर में हैं जो मुसल्लमा नहीं है। अब गैर तस्लीम शुदा मदरसों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा कहा। और अब तक जिन गैर तस्लीम शुदा मदारिस की निशानदेही की गई है उनके बारे में वाज़ेह तस्वीर देने के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाना चाहिए। तो खैर, संघ ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अकलियती कम्युनिटी के बच्चों को नए तालीमी क़वानीन के तहत तालीम फराहम करने पर मुश्तमिल कार्रवाई अंजाम दी जाए। अब यहां पर गोया के मदरसों को निशाना और टारगेट बनाया जा रहा है। एक बड़ी अजीब खबर आ रही है। जहां कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी के लिए, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग हो रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन NIA के DG दिनकर का बड़ा बयान आया है। हुकूमत हिंद दहशतगर्दी और उसकी माली मुआवनत के मामले में बहुत संजीदा है। इस मामले में दिल्ली में 78 ममालिक की नॉमिनी फॉर टेरर की आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। और अब यह कहा जा रहा है DG दिनकर के बयान के मुताबिक, नेशनल इन्वेस्टिगेशन के NIA के DG दिनकर के बयान के मुताबिक कि दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग हो रही है। आइए नजर, एक बड़ी खबर फिर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि हिंदुस्तान और नेपाल, हिंद नेपाल बॉर्डर सरहद 20 नवंबर तक, आज से 20 नवंबर तक बंद रहेंगी। नेपाल में आने वाले इलेक्शन के पेश नजर हिंदुस्तान और नेपाल बॉर्डर जुमेरात की आधी रात से 20 नवंबर तक बंद रहेगी। ये मालूमात देते हुए सरकारी इदारा ने बताया कि जब हिंदुस्तान में इंतखाबात होते हैं तो दोस्त मुल्क नेपाल से बातचीत के बाद सरहदों को बंद कर दिया जाता है ताकि इंतखाबात को पुरअमन तरीके से कराया जा सके। इस बार दोस्त मुल्क नेपाल के लिए मुख्तलिफ ओहदों के लिए वोटिंग की तारीख इतवार को तय की गई है। यह फैसला नेपाल इंतजामिया के साथ मीटिंग के बाद किया गया है। नेपाल में इलेक्शन के पुरअमन इंतकाद से 72 घंटे पहले हिंद नेपाल बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर आज से 20 नवंबर तक बंद कर दिया जाएगा। आइए मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, खबर यह आ रही है कि गर्लफ्रेंड की इस्मत दरी हुई, रेप हुआ, आशिक ने इंतहाई खतरनाक कदम उठाया, उसे इंसाफ दिलाने के लिए वो लड़ रहा था। मंत्रालय के 5वें मंजिले से छलांग लगाकर उसने खुदकुशी की कोशिश की। इस्मत दरी के बाद खुदकुशी करने वाली अपनी गर्लफ्रेंड को इंसाफ दिलाने की कोशिश करने वाले एक आशिक ने गुज़िश्ता कल मुंबई मंत्रालय की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। गुज़िश्ता 3 सालों से आशिक अपनी गर्लफ्रेंड को इंसाफ के हुसूल की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने की वजह से बिल आखिर इंतहाई बुरा कदम उसने उठाया और 5वीं मंजिले से छलांग लगाई। इस नौजवान का नाम बापू नारायण मोकाशी, उम्र 43 साल बताया जा रहा है, जो बीड़ जिले के अष्टी तालुके के प्रगांव जोगेश्वरी गांव का रहने वाला है। खैर, हमारे यहां की गोदी मीडिया को यह मुद्दा उठाना चाहिए कि इस मुल्क में जितनी बेटियों के रेप हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो आसिफा कठुआ कांड हो, अभी तक के मुजरिमों को सजाएं नहीं मिली है, बल्कि रेप करने वाले 11 बड़े बड़े मुजरिमों को गोधरा में इलेक्शन आने की वजह से आजाद कर दिया गया ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जाए। तो इस पर हमारी गोदी और भौंकने वाली मीडिया को इस पर बोलना चाहिए। आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की। जी हां, शिवसेना के बानी की 10वीं बरसी पर संजय राउत, जो शिवसेना के कदावर नेता है और तर्जुमान भी है, उन्होंने हुकूमत से डिमांड किया है कि सावरकर और बाला साहेब ठाकरे, इन दोनों को भारत रत्न दिया जाए। इस तरीके से डिमांड संजय राउत ने हुकूमत से किया है कि सावरकर को भी, ठीक है, बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न दिया जाए। इसमें तो लोगों को कोई शक नहीं है कि भाई दिया जाए।
लोगों को इस पर एतराज और ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सावरकर जो खुले आम, लोग ये कह रहे हैं कि जो खुले आम अंग्रेजों से माफी मांगते थे और अंग्रेजों की मदद करने के लिए तैयार हुए, उनको भारत रत्न कैसे दिया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है नवाब मलिक को लेकर, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी तक जेल के सलाखों के पीछे है। खबर आ रही है कि नवाब मलिक को अदालत से एक और झटका लगा। वाशिंग पुलिस को समीर वानखेड़े के खिलाफ मुबैना रिमार्क की तहकीकात की हिदायत दे दी गई है। महाराष्ट्र की एक सेशन अदालत ने वाशिंग पुलिस को एनसीपी के लीडर नवाब मलिक की जानिब से एनसीबी के मुंबई यूनिट के साबिक इलाकाई डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ किए गए मुबैना रिमार्क की तहकीकात करने की हिदायत दे दी है। यानी नवाब मलिक गोया कि फिर एक और मुसीबत में फंस सकते हैं, या यूं कहिए कि फंसाए जा सकते हैं। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।